Good morning, student. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Okay, Good morning, sir. that means I am audible clearly. Okay. Okay. Screen is visible, everybody. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell me what we discussed in last lecture. हमने last lecture में क्या किया था? Anybody? किसी को याद है? पार्थ, ऋषि, सर इक्वेशन सम कराए थे और एक होमवर्क में दिया था। हाँ, कौन सा सम्स, लेकिन कौन सी मेथड के लिए सम्स किया था हमने? फॉर विच Odd and मेथड? even function, sir. यस दक्ष, यस. Odd and even function, sir. Odd and even function, very good. Okay, so you can see on your screen. Okay, our second method is the Fourier series for discontinuous. Discontinuous start कर दिया था या even odd ही किया था? चलो मैं लेक्चर 5 की नोट्स ओपन करता हूँ and tell me where we reached. Okay, मुझे बताओ कि हम कहाँ पहुँचे थे. Yes, even odd के लिए किया था. Yes, that means Fourier series for even and odd function. So in this method we have discussed this example. Yes or no? Daksh, Parth, ये कर दिया था ना? Yes, sir. यस सर। Yes. Okay. Then next one, second example is this one. We already discussed this one. Find the Fourier series of f of x is equal to mod x. Yes or no? Yes. Okay. Then yes, third example is find the Fourier series of f of x is equal to sin x. हो गया था सर। ये भी हो गया था. Okay, very good. And this one, find the Fourier series of f of x is equal to modulus of cos x. We completed this one. I think this is in homework, है ना? मैंने इसको homework में दिया था. Yes or no? यस सर। है ना? So have you tried for this example, everybody? इसके लिए ट्राई किया था? नो, है ना? नहीं किया ना? प्लीज टेल मी. यस और नो तो बोल ही सकते हो ना? ओके, अगर ट्राई नहीं है किया है तो ट्राई करना. अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताना. ओके, आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन एंड देन वी विल डिस्कस. ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज Fourier series for discontinuous function. So you can see what are the changes, okay, in this method. So पहले हमने I revise all the things. What we discussed first method. First method is our general method. Yes or no? Everybody. Yes, sir. Then second method is for the arbitrary interval. Fourier series for arbitrary interval. That means in this method we have the c less than x less than c plus 2l interval, and in arbitrary interval c less than x less than c plus 2l with l is equal to number. Yes or no? Yes, sir. And then third method what we discussed, that is our even odd concept. That means Fourier series for even odd functions. Okay, in this method we require this interval, sorry, not minus pi, minus l. Okay, so minus l less than x less than l. So this should be there. Okay, this interval should be there. If this interval is there, then you can talk about the even and odd concept. So we already discussed these three methods. So is there any doubt, any question in this three method? Anybody? Student? No doubts. Okay. Then next one is the Fourier series of discontinuous function. That is the next method. So there is no change in the formula of the Fourier series, but the small change in function means let f of x be a function
defined in c less than x less than c plus 2l as f of x is equal to g of x, c less than x less than d, and h of x when d less than x less than c plus 2l. Means your function is distributed in the two different curves, okay, in two ways. Okay, so here you have the partition of the function, here only two partition, so the change is in formula of a0 an and bn. What is the changes? 1 upon l इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x dx हमारा फॉर्मूला था. अब उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये c to c plus 2l को जितनी बार फंक्शन को पार्टीशन करके दिया है उतनी बार यहाँ पे आपको स्प्लिट करना पड़ेगा. दैट मीन्स यहाँ पे देखो, पहले मुझे c to d जाना पड़ेगा, देन d to c plus 2l, एंड फंक्शन f of x c to d में g of x है एंड d to c plus 2l में h of x है. तो उस हिसाब से आपका a0 मिलेगा. फिर an में भी सेम तरीके से आपको इंटीग्रेशन को, एक इंटीग्रेशन जो था उसकी जगह पे जितनी बार फंक्शन को डिवाइड किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उतनी बार आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. That is the change. Okay, and bn में भी similarly c to d and d to c plus 2l means c to c plus 2l को फंक्शन को जितनी बार स्प्लिट करके दिया है, जितनी बार डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, उतनी बार आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा. दैट इज द फूरियर सीरीज ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. बाकी सब कुछ एज इट इज. देयर इज नो एनी चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ f of x, formula of a0, formula of an and formula of bn. Okay, there is no change, but small changes in the integration part. Okay, here you have to find 2 times 3 times जितनी बार फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है उतनी बार आपको फाइंड करना पड़ेगा. Is it okay everybody? Understand? Yes sir. Okay. ऑफलाइन में is it okay? Okay. चलो तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पे देखो, फाइंड द Fourier series of f of x is equal to x and 2 pi minus x. Here x is for 0 less or equal to x less or equal to pi, and f of x is 2 pi minus x for pi less or equal to x less or equal to 2 pi. तो मैं होल इंटरवल कैसे फाइंड करूंगा? 0 to 2 pi, that means minimum and maximum. Okay, that is your whole interval. Okay, so यहाँ पे देखो फंक्शन को कितनी बार यहाँ पे स्प्लिट करके दिया है? 2 टाइम्स, है ना? Yes or no everybody? Yes sir. So this is the example of the Fourier series for discontinuous function. आपको देख के ही पता चल जाएगा इस टाइप के एग्जांपल्स. Is it okay? Yes. ओके, तो अगेन जैसे हम स्टार्ट करते थे ऐसे, हियर f of x इज इक्वल टू जो भी दिया है वो मैंने लिख दिया, x 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू पाई, 2 पाई माइनस x, पाई लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2 पाई. व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? we have to write down the Fourier series. Okay, so the Fourier series is f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. Say it is 1 and l is equal to, तो यहाँ पे l कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरीबडी लुक एट हियर, आवर ओरिजिनल इंटरवल इज c लेस देन x लेस देन c plus 2l, and here given interval is 0 less or equal to x less or equal to 2 pi. Now compare both the sides, so c is equal to 0 and c plus 2l is equal to 2 pi. Now if we put c is equal to 0 in the second part, so we have 2l is equal to 2 pi, so l is equal to pi. Understand everybody how to find l? Yes or no? Yes sir. Okay, so my step number 1 is completed. Now what is my step number 2? कोई बताएगा मुझे? Find a0. Okay, that is the step number 2. Okay, so you can see a0 is equal to 1 by l c to c plus 2l f of x dx. So यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ देखो, वही की वही फॉर्मूला है कि नहीं एवरीबडी? Yes sir. है ना? तो चेंज कहाँ पे होगा? सिर्फ ये इंटीग्रेशन पार्ट में होगा. तो यहाँ पे l की जगह पे मुझे पाई सब्स्टिट्यूट करना था, तो 1 अपॉन पाई. अब मेरा जो गिवन इंटरवल है वो टोटल इंटरवल है 0 to 2 पाई. मैंने आपको बताया कि मिनिमम मैक्सिमम. ओके, सो 0 to 2 पाई f of x dx. अब 0 to 2 पाई को उन्होंने दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है. फर्स्ट यू हैव टू गो विद 0 to पाई एंड देन पाई to
2 पाई। तो ये जो इंटीग्रेशन था वो मेरा 2 बार हो जाएगा, 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। अब 0 to पाई के लिए फंक्शन क्या है मेरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x फॉर 0 to पाई, बोलो X. x। ओके, तो मुझे यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट करना है, x dx प्लस पाई टू 2 पाई में 2 पाई माइनस x, यस, सो 2 पाई माइनस x dx। अब इसका आपको जो एक बार इंटीग्रेशन करते थे वो कितनी बार करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 0 to पाई x dx है, तो इसका एक 1 टाइम एंड पाई टू 2 पाई वाला सेकंड टाइम, एक ही इंटीग्रेशन हमको 2 बार यहाँ पे 2 तरीके से करना है, डिफरेंट। ओके, अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, सो x स्क्वायर बाई 2 0 to पाई प्लस, अब यहाँ पे 2 पाई माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई इंटू 1 बोल सकता हूँ, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, X. माइनस x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड, and pi to 2 pi is our interval, so pi to 2 pi. Now replace pi first in the first bracket, so pi square by 2 minus 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x के लिए 0 रखना था तो सेकंड वाला तो 0, so pi square by 2 आया। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे 2 pi, so 2 pi into 2 pi, 2 pi square, ओके, माइनस x की जगह पे 2 pi, that means 2 pi whole square divided by 2, सेकंड में मैंने सब्स्टिट्यूट किया, माइनस अब पाई सब्स्टिट्यूट करना है तो 2 पाई इंटू पाई, सो इट विल बी 2 पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सेकंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका माइनस, और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके डन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये मेरा टोटल 1 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 हो जाएगा, सो पाई स्क्वायर। Now here we have 2 pi square, that means 4 pi square whole square है, इसलिए यहाँ पे 4 pi square divided by 2, so 2 will be cancel out, so we have minus 2 pi square, and here again minus 2 pi square, so यहाँ पे 4 pi square minus 2 pi square minus 2 pi square, so we will get 0 for the other part, so we have only pi square term, so pi square में से एक pi cancel हो जाएगा, so I have pi, that is the value of A0. So is there any doubt, any question in A0? Anybody? Any doubt? No doubt, sir. Okay. Then we go for the AN. So what is the formula for AN? 1 upon L integration C to C plus 2L f of x cos n pi x by L dx. Now here f of x as it is रखना है आपको, पहले होल इंटरवल सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मींस 1 अपॉन l की जगह पे पाई 0 to 2 pi f of x as it is cos n pi x by l, में से आप अगर यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई पाई कैंसिल होके सिर्फ nx बचेगा एंड dx हो जाएगा। ओके डन। अब नेक्स्ट, अब 0 to 2 pi को कितनी बार स्प्लिट करके दिया है यहाँ पे, 2 times, 0 to pi है and pi to 2 pi. So this is the change in this method only. There is no other change in any formula. So 0 to pi, for 0 to pi what is the value of f of x? X. So x into cos nx dx plus pi to 2 pi. So f of x for pi to 2 pi, 2 pi minus x. तो मैंने 2 pi minus x substitute कर दिया cos nx dx. Now focus on the first integration, so you can use the UV rule, है ना। so पहले x as it is, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin, so sin nx upon n minus derivative of x, what is the derivative of x, 1, यहाँ पे 1 हो गया। now integration of sin nx, what is the integration of sin nx, minus cos nx divided by n, but here already we have the n, so n into n square हो जाएगा, and our limit is 0 to pi, so you have to substitute 0 to pi. Now think about the second integration, again UV rule, so 2 pi minus x as it is, integration of cos will be sin, so sin nx upon n minus the derivative of 2 pi minus x, तो 2 pi का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 एंड x का 1, लेकिन x के आगे माइनस है इसलिए मुझे आंसर मिलेगा -1। ओके,
and again integration of sin nx, that means minus cos nx upon n square. Okay, because there is n already there. Okay, so n into n square, and my limit is pi to 2 pi. Okay, now after completing this step we have to check about the sin term. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट लिमिट के लिए चेक करते हैं. देखो sin n into pi, so sin n pi ऑलवेज क्या होता है 0. ओके, एंड sin 0 0. ओके, तो यहाँ दोनों के लिए वो 0 हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मूव कर दिया, रिमूव कर दिया. ओके, देन पाई टू 2 पाई के लिए चेक करते हैं. तो sin 2n पाई, सो sin 2n पाई क्या हो जाएगा अगेन 0, तो वो तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ओके, एंड sin पाई के लिए तो 0 ही था, sin n पाई 0 था, तो ये भी दोनों लिमिट के लिए 0 हो जाता है. सो वी थिंक अबाउट ओनली दिस टर्म, yes or no, है ना. So 1 upon pi, here minus minus, plus cos n into pi minus cos 0 divided by n square. Okay, minus, now substitute 2 pi, so minus minus plus, plus minus minus, so here I write down minus. Okay, then bracket minus, तो यहाँ से चला गया है, that means cos 2n pi हो जाएगा. So cos 2n pi minus cos n pi, क्योंकि ये माइनस मैंने ऑलरेडी अंदर ले लिया है, दैट मींस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस करके ही यहाँ पे माइनस लिखना. ओके, तो अंदर वाला माइनस अब कंसीडर नहीं होगा. ओके, सो cos 2n pi माइनस cos n pi डिवाइड बाय n स्क्वायर. अब हमको पता है कि cos n pi क्या होता है -1/n, सो आई राइट डाउन -1/n. जो n स्क्वायर दोनों में था इसलिए उसको मैंने बाहर रख दिया, दैट मींस 1 अपॉन पाई n स्क्वायर. यहाँ पे -1/n हुआ, cos 0 मीन्स 1, cos 2n pi मीन्स -1 क्या होता है 2n, बट -1/2n इज नथिंग बट 1, क्योंकि -1 का इवन पावर हुआ ना, इसलिए वो 1 हो जाता है. एंड यहाँ पे आप देखो माइनस माइनस प्लस है ना, और यहाँ पे cos n pi दैट मीन्स -1/n. सो 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 हो जाएगा, -1 तो 2, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया. सो 2 अपॉन पाई n स्क्वायर -1/n -1. So this is my an. So is there any doubt, any question in the an? Anybody? No, sir. No, sir. I want confirmation from all the student, maximum student, please. No, sir. No doubt, sir. Okay. No, sir. Thank you. Okay, then next step number 4, that is the bn. Okay, bn का फिर से similarly 1 upon l integration c to c plus 2l f of x sin n pi x by l dx. So l की जगह पे pi, so 1 upon pi 0 to 2 pi f of x sin, यहाँ पे pi कैंसिल हो जाएगा, so sin nx dx. So 1 upon pi इंटीग्रेशन के लिए दो अलग अलग तरीके से स्प्लिट करना है, so 0 to pi and pi to 2 pi. So 0 to pi के लिए मेरा फंक्शन है x, so x into sin nx dx, and here f of x is my 2 pi minus x for the pi to 2 pi sin nx dx. Now again UV rule for the first and UV rule for the second. So start करते हैं. तो क्या होगा यहाँ पे देखो 1 upon pi x as it is, that means x as it is, integration of sin will be minus cos, so minus cos nx upon n माइनस, अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 माइनस cos का इंटीग्रेशन माइनस sin. ओके, सो माइनस sin nx upon n square. 0 to pi is the limit of the first integration. Now think about the second. So यहाँ पे क्या होगा 2 pi minus x as it is, integration of sin minus cos माइनस, यहाँ पे क्या होगा इसका 2 pi का 0 माइनस x का -1, सो -1 माइनस cos का इंटीग्रेशन minus sin nx upon n square, and pi to 2 pi is the limit of the integration. Okay, again after completing this step we have to check about the sign, but already an में check कर लिया है, तो फिर से यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको क्रॉस करना है. ओके, bn के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, सो देयर इज नो नीड टू चेक अगेन. अब यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे बचा और एक टर्म यहाँ पे, सो x इंटू माइनस cos nx अपॉन n में पाई सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा -pi cos n pi प्लस,
अब देखो x की जगह पे 0 रखना था तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय n। देन इसके लिए सोचते हैं, चलो 2 पाई पहले रिप्लेस करो, सो 2 पाई माइनस 2 पाई 0। ओके, अब पाई रिप्लेस करो तो 2 पाई माइनस पाई पाई माइनस कॉस n पाई डिवाइड बाय n। सो मैंने यहाँ पे वही लिखा है क्योंकि सेकंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसलिए माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे पाई इंटू कॉस n पाई अपॉन n आएगा। अब देखो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व हियर, सो फर्स्ट टर्म इज माय माइनस पाई कॉस n पाई अपॉन n एंड लास्ट टर्म इज माय प्लस कॉस n पाई अपॉन n। दोनों टर्म सेम ही है, ओनली डिफर इज साइन। सो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। सो वी हैव द 0 आंसर। सो इज देयर एनी डाउट इन bn, एनीबॉडी? No, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? No doubt. ओके, सो इसमें थोड़ा आपका काम बढ़ जाता है ये मेथड में। क्यों? क्योंकि आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ओके, क्या आप देखो सब्स्टिट्यूटिंग, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट f of x is equal to a0 by 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0? पाई। सो पाई बाय 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an का वैल्यू क्या था, 2 by pi n square minus 1 raised to n minus 1। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 by pi n square minus 1 raised to n minus 1 into cos n pi x by pi। सो पाई पाई यहाँ पे कैंसिल होके सिर्फ कितना बचेगा, nx बचेगा। एंड bn मेरा क्या है, 0 है, अभी हमने चेक किया ना। सो bn की वाला जो पार्ट था साइन वाला वो पूरा 0 हो जाएगा। सो हियर which is required Fourier series। so is there any doubt, any question in this example, anybody? किसी को भी डाउट है? ऑफलाइन में नहीं है ना, ऑनलाइन में? एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, एनीबॉडी? No doubt, sir. ओके, No doubt. थैंक यू। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सोचते हैं। यस, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ f of x is equal to 0 and 1 minus 2 less than x less than 0 0 less than x less than 2। ओके, तो यहाँ पे अगेन फंक्शन के पास कितने पार्टीशन है, 2। चलो मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ तो, फंक्शन की मिनिमम इंटरवल कौन सा है, वैल्यू -2। यस, मैक्सिमम 2। 2। सो आवर होल इंटरवल इज -2 to 2। तो यहाँ पे देखो -l to l हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इवन ऑड में जाएगा, क्योंकि फंक्शन स्प्लिट करके दिया है, इसलिए यू कैन नॉट अप्लाई द इवन ऑड कॉन्सेप्ट। ओके, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी आपने गलती कर दिया तो आपका एग्जाम्पल पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चेक कर सकते हैं लेकिन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो डोंट डू इट। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो हमारी जो मेथड है उसी से जाएंगे। सो हियर f of x is equal to 0 1 minus 2 less than x less than 0 0 less than x less than 2। सो द फूरियर सीरीज इज क्या हो जाएगा, f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l। that is equation number 1। and L कैसे फाइंड करेंगे, so c less than x less than c plus 2l is my original interval। now given interval is -2 less than x less than 2। so compare both sides। so we have c is equal to -2, c plus 2l is equal to 2। so c is equal to -2 इसमें रिप्लेस करूँ, so -2 plus 2l is equal to 2। so 2l is equal to -2 plus 2 कितना हो जाएगा, 4। and l is equal to 4 by 2, that is my l is equal to 2। okay, understand? Yes, sir. Okay, so L is equal to 2 मुझे मिल गया, मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। Now I go for the A0। A0 is equal to again 1 upon L इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x dx। so L की जगह पे 2 रिप्लेस करना था क्योंकि हमने अभी फाइंड किया है कि L is equal to 2 है। so 1 by 2 my given interval is -2 to 2 है ना, f of x dx। अब -2 to 2 को 2 बार स्प्लिट किया गया है, so -2 to 0 जाऊंगा, फिर 0 to 2। so -2 to 0 then 0 to 2। अब -2 to 0 के लिए what is the value of f of x, 0 है ना everybody? ऑनलाइन में is it okay? Yes, sir. Yes, Okay. sir. No doubt. यहाँ पे मैंने 0 रिप्लेस कर दिया। now tell me what is the value of 0 to 2 of function f of x?
1. ओके, सो 1 मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है ना, ड्यू टू द इंटीग्रांड इज 0. अब 0 to 2 1 dx, so 1 का इंटीग्रेशन तो वेरी इजी, x 0 to 2, so 1 by 2, here we have 2 minus 0. Okay, so 2 will be cancel out, my answer is 1 for A0. Okay, understand? Yes, sir. Yes. Now Yes. an के लिए चलते हैं. So write down the first formula for the n, that is 1 upon L integration c to c plus 2L f of x cos n pi x by L dx. So 1 by L की जगह पे 2. My given interval is -2 to 2 f of x cos n pi x by 2 dx. Now we know that the first part of our integration is 0, है ना, हमने a0 में दिखा दिया ना कि पहला फंक्शन 0 है, तो यहाँ पे an में नहीं दिखाए तो भी चलेगा. So we can save our time. Okay, सिर्फ इतना लिख देंगे, f of x is equal to 0 for -2 less than x less than 0. तो कौन सा वाला बाकी बचेगा, सिर्फ 0 to 2 वाला बचेगा ना. Okay, so we need to discuss about the 0 to 2 interval only. So 0 to 2 f of x का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 cos n pi x by 2 and dx. Okay, so 1 by 2. Now इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या हो जाएगा, sin. सो sin n pi x by 2 डिवाइड बाय कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे पूरा n pi by 2 आएगा. ओके, सो n pi by 2 एंड लिमिट विल बी 0 to 2. सो 1 by 2, यहाँ पे इसको उल्टा कर सकता हूँ बिकॉज वी हैव द a by b by c. सो व्हाट कैन राइट डाउन हियर, ac by b, है ना, क्योंकि जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है, तो यहाँ पे पूरा ऊपर चला जाएगा. सो 2 by n pi इंटू साइन. ओके, चलो पहले 2 रिप्लेस करो. सो क्या आएगा, साइन 2 n पाई डिवाइड बाई 2 माइनस साइन 0. ओके, ऐसा आएगा कि नहीं. सो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया. चलो वेरी गुड. सो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन n पाई एंड यहाँ पे तो साइन 0 ही. सो साइन n पाई इज इक्वल टू 0 और ये भी 0 है. सो 0 माइनस 0 के ये पूरा an मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी. Yes, sir. ओके, Yes, sir. देन bn. चलो वी थिंक अबाउट द bn. सो bn इज इक्वल टू 1 बाय l इंटीग्रेशन c to c plus 2l f of x sin n pi x by l dx. सो अगेन यहाँ पे सेकंड पार्ट दिखाने की, सॉरी फर्स्ट पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे मेंशन कर देंगे बिकॉज इट इज 0 है ना, इन -2 to 0. So 1 by 2, that is value of L, 0 to 2, f of x is my 1 for the 0 to 2 and then sin n pi x by 2 dx. So 1 by 2 as it is, the integration of sin will be minus cos, so minus cos n pi x by 2 divided by n pi by 2, 0 to 2. So 1 by 2, यहाँ पे इसको पूरा उल्टा करूँगा तो 2 upon n pi and here minus cos n pi, 2 will be cancel out plus cos 0 है ना, क्योंकि सेकंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 0 रिप्लेस करना है तो cos 0. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos n pi, -1/n और ये 2 upon n pi हो जाएगा. सो 1 by 2, 2 upon n pi, दिस विल बी -1/n प्लस cos 0 मीन्स 1. यहाँ पे 2 will be cancel out, so we have 1 upon n pi bracket minus -1/n plus 1. So any problem in bn? No, Any sir. problem? Okay. No, So sir. yes, we have completed our step number 4. So what is our step number 5? Step number 5 is substituting the values. Okay, so substituting all these values in equation 1. What is our equation 1? That is our Fourier series. Okay, so Fourier series में substitute करना, that is the step number 5. So f of x is equal to a0. What is the value of a0? a0 is 1 है ना. So f of x is equal to a0 by 2. So 1 by 2, that is my first term है ना. So 1 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a0, sorry an into cos आएगा. So an here an is 0, तो फर्स्ट पार्ट पूरा 0 हो जाएगा प्लस करके bn मीन्स क्या है मेरा 1 upon n pi minus -1/n plus 1 into sin n pi x by l आता है
तो L की जगह पे 2 रिप्लेस करना है. So if you write down systematically, so we have 1 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity 1 upon n pi 1 minus 1 raised to n into sin n pi x by 2. Okay, so this is my f of x. यहाँ पे f of x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. Why? Because we have the function in the partition. Okay, there are two partition. इसलिए यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लिखे वो नहीं लिख सकते, not decided है ना. इसलिए ये पूरा फंक्शन का ही पूरा ये फूरियर सीरीज है. So any doubt, any question in this example, anybody? No doubt, sir. No doubt, sir. Okay. So here which is required Fourier series. Yes. Then yes, homework example, but हम यहाँ कर ही देते हैं. चलो, find the Fourier series of f of x is equal to 0 k 0. Okay, चलो यहाँ पे करते हैं. मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ एग्जाम्पल क्योंकि we have the time. Okay, so example. So क्या है example? Find the Fourier series for f of x is equal to 0 k 0. I think this is our example. है ना? 0 k 0 ही था ना? Yes, 0 k 0. Okay. So 0 k 0 में यहाँ पे देखो 0 था मेरा -2 लेस देन x लेस देन 0 के लिए या 1 के लिए था. I think 1 के लिए 1. Yes, -1 के लिए. Yes, then yes, this is my -1. Then k for the -1 less than x less than 1 and 0 again for the 1 less than x less than 2. Okay, so this is my given data. Okay, so now tell me what is our given interval? Whole interval कौन सा है? -2 to 2. Very good. Minimum that means -2 and maximum that means the 2. The range of the x will be -2 to 2. So again we start with the solution. Here f of x is equal to this one, है ना? ये लिख देंगे. Then the Fourier series is f of x is equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l and l कितना मिलेगा? चलो बताओ मुझे. What should be my l? Again compare this with the c less than x less than c plus 2l. Yes, very good. So if you solve these two by comparing both the side, so we will get c is equal to 2. अभी आगे एग्जाम्पल में किया ना वही का वही है ना. So l is equal to 2. Now I have the l and the Fourier series. So again start with the a0. So where a yes नहीं c तो -2 आएगा सही है. c सॉरी l c तो -2 आएगा. यू आर राइट. सो c इज इक्वल टू -2 एंड c प्लस 2l इज इक्वल टू 2. अब जैसे ही आप यहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2l इज इक्वल टू 4 हो जाएगी. दैट मीन्स l इज इक्वल टू 2. डन. ये मेरा लिखने में गलती हो गया. l इज इक्वल टू 2 आएगा. ओके, सो a0 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरी फॉर्मूला 1 by l c to c plus 2l f of x dx. ओके, सो 1 by 2 इंटीग्रेशन के 3 पार्टीशन. सो मैंने 3 पार्टीशन में लिख दिया. फर्स्ट पार्टीशन इज कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे? मिनिमम से. सो मिनिमम इज माय -2. यस, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए क्या करेंगे, आपको ऊपर नीचे करके दे देंगे. ओके, लेकिन हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? फर्स्ट इंटीग्रेशन स्मॉलेस्ट वैल्यू से. ओके, मिनिमम वैल्यू से. सो -2 to कहाँ तक जाएंगे? -1. और जहाँ पर भी आप स्टॉप होते हो then next will be start from that point only. So -1 to कहाँ तक है? 1. अब यहाँ 1 पे स्टॉप हुए. सो 1 से फिर से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है? 2 तक. ओके, सो -2 to -1 में फंक्शन क्या है? 0. सो 0 dx. -1 to 1 में k dx. 1 to 2 में 0 dx. ओके, सो अब देखो यहाँ
ये मेरा फर्स्ट पार्ट तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू द इंटीग्रांड 0 दैट मींस दिस विल बी 0, लास्ट पार्ट भी क्या हो जाएगा 0। तो मुझे सॉल्व किसको करना है, सिर्फ -1 to 1 k dx, एंड k जो है वो यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट मींस जीरो नहीं ले सकते, उसके अलावा जो भी लेना है आप देखो स्टेटमेंट में भी लिखा होगा, यस ठीक है, k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो इसीलिए लिखा है क्योंकि जैसे ही आप जीरो रख देंगे तो ये तो इन दोनों का जैसे केस हो जाएगा ना, इसीलिए वहां पे मेंशन किया है नॉन जीरो। ओके, अब मुझे ये इसको सॉल्व करना है, तो k तो कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1x? X. Yes, so -1 to 1. Now replace 1 and -1. So k 1 minus 1. So we have k into 1 plus 1. So we have 2k. Okay, done. Then an के लिए चलते हैं. So what is my an? So an is equal to हो जाएगा 1 by l integration c to c plus 2l. Sorry. हाँ, A0 में 1/2 क्यों? हाँ आगे 1/2 है, यस सॉरी यस। सो यहाँ पे देखो k/2 आगे था ना 2, हाँ यस थैंक यू, वो तो हमने जल्दबाजी में छोड़ ही दिया था। ओके, सो k/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी k/2, यहाँ पर भी k/2 और यहाँ पे by 2, सो वी हैव द k। क्योंकि यहाँ पे 1/2 था ना एवरीबॉडी, यस और नो? Yes, sir. है ना, सो ऐसी जल्दबाजी मत करना है। तो आप देखो 1 by l c to c plus 2l f of x into cos n pi x by l dx. So 1 by l is my 2, so यहाँ पे again -2 to 2 f of x cos ये हो जाएगा n pi x by 2 dx। ओके, अब हमने फर्स्ट A0 में ये दोनों ही दोनों जीरो हो रहे हैं ऐसे यहाँ पे दिखा दिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो नॉन जीरो होता है वो भी आप ले सकते हो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2 -1 to 1 k into cos n pi x by 2 dx कर सकते हैं कि नहीं हम यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, बिकॉज f of x is equal to 0 for other intervals. Okay, done? Everybody understand? सर Yes, -2 से 2 को -1 से 1 में कन्वर्ट कैसे हुआ सर? हाँ देखो मुझे पता ही था। देखो यहाँ पे -2 to 2 को कितनी बार पार्टीशन करके दिया है, 3 टाइम्स पार्ट, है ना। यस सर। हाँ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो -2 to -1 प्लस -1 to 1 एंड 1 to 2। सो फंक्शन जो मुझे फंक्शन रिप्लेस करना है, तो फंक्शन में -2 to -1 में फंक्शन 0 है, तो 0 इंटू कॉस करूंगा तो 0 ही हो जाएगा पार्ट। ओके यस है ना, यस सर। -1 to 1 करूंगा तो क्या आएगा, k आएगा ना, a into cos। यस k इंटू कॉस, तो मैंने ये यहाँ पे वही लिख दिया। ओके, फिर 1 to 2 में फिर से 0 इंटू कॉस, सो 0 आया तो फिर उसका आंसर 0 हो जाएगा। सो जो नॉन जीरो था वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दैट मीन्स मिडल वाला -1 to 1 वाला। बाकी दोनों ही दोनों आप आगे पीछे 0 करके भी दिखा सकते। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. है ना। Yes, sir. सो k/2 मैंने बाहर ले लिया, एंड नाउ नेक्स्ट आई हैव द cos ओनली। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होगा, Minus sign. सो sin n pi x by 2 डिवाइड बाय n pi by 2 एंड लिमिट विल बी -1 to 1। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप sin n pi x by 2 में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है। देखो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एग्जांपल में उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वंडरफुल एग्जांपल फॉर दैट, है ना। तो पहले आपको चेक करना है, फिर आपको उसको कैंसिल करना है, होता है तो। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो उसको एज इट इज रखेंगे। सो an इज इक्वल टू व्हाट आई हैव k/2 इनटू, अब इसको उल्टा करके लिखो,
2 अपॉन एन पाई, और यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन एन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस एन पाई बाई 2। यस और नो एवरीबॉडी, है ना? अब मुझे पता है कि साइन कैसा फंक्शन है, और सो माइनस जो है वो बाहर दे देगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो वी हैव, यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल आउट, सो वी हैव k बाय n पाई एंड हियर माइनस माइनस प्लस, सो 2 टाइम्स Sin n pi. साइन n पाई बाय 2। अब n पाई बाय 2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप जैसे ही n सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 तो पाई बाय 2 आएगा, 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 करेंगे तो 3 पाई बाय 2, दैट मीन्स -1। तो 3 वैल्यू आ रहा है, तो हम क्यों सब्स्टिट्यूट करें, उसको ऐसे ही रखते हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 2k अपॉन n पाई इंटू साइन n पाई बाय 2, दैट इज माय an। सो एनी डाउट इन an, एनीबॉडी? No, sir. ओके, नाउ No doubt, sir. यस, थिंक अबाउट द bn। चलो bn के लिए थिंक करो, तो bn के लिए क्या होगा? सो bn के लिए अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना जहाँ पे मेरा an मैंने दिखाया था कि सब कुछ बाकी का 0, तो यहाँ पे देखो 1/2 ये हो जाएगा -1 to 1, सीधा लिख रहा हूँ, चलेगा ना? ओके एवरीबॉडी, आप कंप्लीट कर दोगे ना? Yes, sir. है ना। सो साइन n पाई x/2 dx, सिर्फ यही ये जिंदा रहेगा, बाकी दोनों ही दोनों मर जाएंगे, है ना, दैट मीन 0। डन। सो यहाँ पे हुआ मेरा 1/2, दैट मीन्स k/2, क्योंकि k को मैंने बाहर ले लिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस n पाई x/2 डिवाइड बाय n पाई/2 एंड माय इंटरवल विल बी -1 to 1। नाउ सब्स्टिट्यूट 1, सो क्या होगा देखो k/2, यहाँ पे 2 अपॉन n पाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, सो माइनस कॉस n पाई/2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैं सेकंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसलिए, कॉस माइनस n पाई/2, बट वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस n पाई/2 इक्वल टू cos n पाई/2, है ना? Cos x. n by 2 0। सो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो k अपॉन n पाई, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस कॉस n पाई/2 एंड यहाँ पे प्लस कॉस n पाई/2। सो प्लस माइनस हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। सो मेरा bn 0 हो गया। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, तो अब मेरा ये तो फिर स्टार्ट हो गया। ओके चलो, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, a0 an एंड bn तीनों मेरे पास है। सो व्हाट शुड बी माय फूरियर सीरीज? सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना बाकी बचा। ओके, कर देंगे ना आप? Yes, sir. लेकिन मैं करवा देता हूँ, डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ। देखो f of x इज इक्वल टू a0/2, सो a0 मीन्स मेरा k, सो हो जाएगा ये मेरा k/2, है ना, प्लस समेशन n इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ, प्लस k समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। अब मेरा an क्या आया था? an मेरा था, an 0 नहीं था, an तो साइन वाला था ना, है ना। सो 2k, यस 2k डिवाइड बाय n पाई इंटू साइन, क्या था, n पाई/2 साइन, यस n पाई/2, ये तो मेरा an आया। अब उसके साथ साइन अलग से, सॉरी कॉस अलग से आता है कि नहीं? कॉस क्या आएगा, n पाई x बाय l, l मीन्स मेरा 2, ओके। सो a0 इंटू कॉस n पाई x बाय l, है ना, प्लस साइन, यहाँ पे bn इंटू साइन, बट bn मेरा क्या है, 0 है। सो उसको आगे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट करके क्लोज कर दूंगा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. So is there any doubt, any question in this example? No, sir. हो सर। ओके, सो अब तक हमने कौन कौन सी मेथड स्टडी किया, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो फर्स्ट हमने स्टडी किया जनरल मेथड, विच इज c <x <c + 2n।
सेकंड किया आर्बिट्ररी इंटरवल, दैट मींस c लेस देन x लेस देन c प्लस 12 विद l इज इक्वल टू नंबर, मींस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। देन थर्ड इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए हमने फूरियर सीरीज चेक किया था, ओके। एंड देन टुडे वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फोर्थ मेथड, एंड दैट मेथड इज फूरियर सीरीज फॉर discontinuous function. Okay, everybody understand? Yes, sir. And last method, that is the Fourier series for half range series, वो हम next class में करेंगे. Okay, that is the last method, half range Fourier series. Okay, done? Half range sine और cosine ऐसे बोला जाता है. So there are 5 methods in our unit, और करना सभी में एक ही है. First step is write down the Fourier series. Second step is find out A0. Then third step is find out AN. Then fourth step find out BN. And last step, step number 5 is substituting all these values in Fourier series. Okay, that is the step number 5. सभी में वही करना है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है. So you can do very well. So is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No doubt, sir. सर आप ये शेयर कर दे कि सर पीपीटी? हाँ बेटा, मैं सब कुछ कल भी परसों भी मैं लेके बैठा था. YouTube पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, है ना. तो मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, और एक साथ ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद ये पूरे सभी प्रेजेंट